Good morning. Good morning, all of you. Welcome to my class. Today we will deal with the skeleton of sponges. The different types of skeleton or endoskeleton found in sponges. In last class, we have dealt with canal system of sponges. Today we will deal with skeleton of sponges. What are the phylum Porifera, skeleton of sponges? It is very important because the classification of the Porifera are dependent on the or on the basis of the skeleton of the sponges. So like any other animals, sponges is a very primitive animal. It is a diploblastic animal. It possesses some sort of skeleton that gives their body some sort of shape and structure. All the sponges have skeleton embedded in the mesenchyme because the sponges are diploblastic, that is ectoderm, that is pinacoderm, and endoderm, that is choanoderm. Divided in between these two, there is a mesenchyme, and all the skeleton that are embedded in this mesenchyme. A skeleton consists of separate spicules or a needle-like structure or a axe-like structure, separated spicules और interlacing spongin fibers या both, या तो spicules होगा या spongin fibers हो गया या दोनों मिल सकते हैं. Skeleton जो है supports and protects the soft body parts of the sponges, and it, as I told you earlier, it also serves as the basis of classification of the sponges into the various forms like Calcarea, Hexactylida, Demospongia. The following points highlights the main two types of skeleton element found in sponges are spongin fiber and spicules. Spongin fibers and spicules. What are the spongin fibers? The spongin comprise of a fiber of spongin. It is made up of spongin and then resembles like a silk-like appearance. It resembles like a silk. These are a proteinous secretion. ये प्रोटीन का secretion है from the cells spongioblast. Spongioblast cells जो mesenchyme में present होते हैं उससे ये secrete होते हैं spongin fiber and form a network और जालीनुमा structure बनाते हैं. In most cases दो तरह के प्रोटीन रहते हैं इसमें, spongin B and spongin A. In some cases the fiber are composed of collagen called spongin A. What is the structure of spongin? The spongin is an organic elastic substance which resemble silk in chemical composition. जो silk का chemical composition होता है उससे ये बहुत मिलता जुलता है. It is an scleroprotein containing sulfur and chemically related to collagen. Collagen से relate करता है. It is insoluble in water and chemically resistant to protein digesting enzyme. Spongin fibers are fine thread-like structure consisting of a soft granular axial core externally surrounded by concentric layer of, ये जाल के रूप में, वेब के रूप में बनाता है. Spongin also contains large amount of iodine. This is the reason पुराने जमाने में जो बाथ स्पॉन्ज होते हैं, you can see the इस बाथ स्पॉन्ज आप देखिएगा उसमें स्पॉन्जिन रहता है, इसीलिए वो सॉफ्ट होता है. अगर स्पिक्यूल्स नहीं होते इसलिए वो सॉफ्ट होता है. तो दिस इज द रीजन इन ओल्डन इसमें बहुत आयोडीन पाया जाता है. अभी क्योंकि मेनली मेराइन होते हैं, दिस इज द रीजन दैट द ओल्डन डेज द बाथ स्पॉन्ज वाज यूज्ड एज क्योर फॉर अ क्रूप. ये एक बीमारी का नाम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट कंडीशन इन अ चिल्ड्रन resulting from inflammation and the partial obstruction of rallies. इसमें आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से इसको पुराने जमाने में एज अ क्योर यूज किया जाता था. In the class Demospongia, spongin fiber occurs in various forms. Classification of sponges के लिए आप लोग कॉलेज के वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका ई नोट डाला हुआ है. You can go for the classification of sponges.
तो डेमोस्पोंजिया में ये बहुत तरह के आपको वेरियस फॉर्म्स में मिलते हैं. इट मे अकर एज अ सीमेंट कनेक्टिंग टुगेदर विद सिलिशियस स्पिक्यूल्स, और ब्रांचिंग फाइबर के रूप में सिलिशियस स्पिक्यूल्स के बीच में एम्बेडेड हो सकते हैं. और इन केराटोसा spicules are completely absent and a spongin alone is formed. केराटोसा में स्पिक्यूल्स नहीं रहते हैं और सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर ही मिलते हैं. Now what is the development of spongin? How does it develop? The spongin fibers are secreted by a cell known as spongioblast. अभी मैंने बताया था कि ये spongioblast cells से सीक्रेट होता है. ये स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स कहाँ रहता है? मेसेनकाइम्स में. मेसेनकाइम में एम्बेडेड रहता है स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स, इसी से ये सीक्रेट होता है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड इन द रो. जब स्पॉन्जियोब्लास्ट डेवलप होते हैं उसमें सेल्स जो हैं रो में अरेंज हो जाते हैं. एंड स्पॉन्जिन रॉड्स secreted by them, और स्पॉन्जिन रॉड के रूप में सीक्रेट होता है और फ्यूज्ड विद द नेबरिंग सेल्स, और अपने बगल वाले सेल से फ्यूज होता जाता है और एक लॉन्ग फाइबर के रूप में बनाता है. And later on the spongioblast vacuolated and finally get degenerated after secreting कुछ certain amount of spongin के secretion के बाद ये जो spongioblast cells हैं वो degenerate हो जाते हैं. Now second one is spicules. This is the main important. There are only two types of endoskeleton, that is spongy and spicules. The second one is spicules. The spicules are also known as sclerites, have definite bodies consisting of spines. ये कांटे नुमा structure होता है. Spines radiating from a point. एक पॉइंट से स्पाइन्स रेडिएट होते हैं. ट्राई रेडिएट, हेक्सा रेडिएट, 6 कांटे में या 3 कांटे में या 4 कांटे में, उसी के अनुसार इसका नेमिंग होता है. ईच स्पेक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. एक बीच में एक्सिस होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, अराउंड विथ उसके चारों तरफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएंगे. आइदर वो कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे या सिलिका के होंगे, हाइड्रेटेड सिलिका. तो एक कोर होगा, एक्सिस होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, जिसके चारों तरफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे. किस चीज के फॉर्म में? आइदर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या सिलिका. दे एग्जिबिट ए ग्रेट वेराइटी टू फॉर्म एंड शेप, और अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अनुसार ही हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. तो द स्पिक्यूल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 प्रिंसिपल साइज डिपेंडिंग ऑफ साइज. अगर हम लोग साइज को लेके चलें तो पहले 2 तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं. स्पिक्यूल्स आर माइक्रोस्कोपिक. ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि रिजिडिटी देते हैं स्पॉन्जेस को. स्पिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्पाइन्स और रेज. अभी बताया मैंने, इसमें से रेज निकलते हैं, एक फ्रॉम अ पॉइंट, एक एक्सिस से रेज निकलते हैं और स्क्लेरोबास्ट से सीक्रेट करते हैं. और ये 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मेगा एंड माइक्रो. बड़े होंगे तो मेगा एंड छोटे होंगे तो माइक्रो. ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोर ऑर्गेनिक मटेरियल. अगर अभी मैंने बताया था कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है तो calcareous spicules होंगे. All kinds of spicules have a core organic material. कोर में ऑर्गेनिक रहता है, उसके चारों तरफ इधर कैल्शियम कार्बोनेट या कोलोइडल सिलिका डिपॉजिट होता है. तो उसके अनुसार 2 तरह के होंगे कैल्केरियस स्पिक्यूल्स. अगर ऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस टाइप ऑफ स्पिक्यूल इज कैल्शियम कार्बोनेट. अगर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट का है तो ये कैल्केरियस स्पिक्यूल होंगे. और ये किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है? कैल्केरिया, बिकॉज स्पिक्यूल्स पे ही डिवीजन होता है. और सिलिशियस स्पिक्यूल, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल जो एक्सिस के चारों तरफ सीक्रेट हो रहा है वो कोलोइडल सिलिका या सिलिकॉन का है तो ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहेंगे. एंड दिस टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस अक्रॉस हेक्साक्टिनिया. साइज पे अभी मैंने बताया था, साइज पे 2 तरह के हो सकते हैं स्पिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अगर बड़ा है, अब साइज बहुत बड़ा है तो मेगा स्क्लेरस, अगर बहुत छोटा है तो माइक्रो स्क्लेरस. साइज के अनुसार मेगा स्क्लेरस एंड माइक्रो स्क्लेरस.
और डिपोजिशन के अनुसार कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और सिलिशियस स्पिक्यूल। और द मेगास्केलर्स जो है एक्चुअली फॉर्म द चीफ स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का जो चीफ स्केलेटन फ्रेमवर्क है ये मेगा स्पिक्यूल्स बनाता है। द माइक्रोस्केलर्स जो है प्रेजेंट थ्रू आउट द मेसेंकाइम, और माइक्रोस्केलर्स जो है ये प्रेजेंट रहते हैं मेसेंकाइम में। बट सच डिवीजन ऑफ स्पिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज इज नॉट रिगार्डेड एज एक्यूरेट। लेकिन साइज के अनुसार अगर हम लोग देखें तो बहुत उसको एक्यूरेट नहीं मानते हैं, इसीलिए हम लोग उसको फिर दूसरा डिवीजन पे करते हैं। और दे आर बेस्ट क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द एक्सेस। कितना रे निकल रहा है स्पिक्यूल से, उसके अनुसार अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सेस एंड रे, कितने रे निकल रहे हैं, इसमें एक ही है, इसमें सब में एक है तो मोनो एक्सॉन। मोनो मीन्स एक, एक्सॉन। द स्पिक्यूल्स में अकर इन सेवरल फॉर्म्स, लाइक सिंपल रॉड के फॉर्म में होगा, या फोर्क के फॉर्म में होगा, या एंकर के फॉर्म में होगा, स्टार के फॉर्म में हो सकता है, प्लम्स के फॉर्म में हो सकता है। तो द स्पिक्यूल्स फॉर्म जो है किस पर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ एक्सिस एंड रे, किसमें कितने उससे रेस निकल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ये डिवाइड होते हैं इन चीजों में। नंबर 1 है मोनो एक्सॉन। मोनो मीन्स 1, देखिए इसमें एक ही रे है तो ये मोनो एक्सॉन है। These kind of spicules are formed by the growth along one axis. अगर एक ही एक्सिस के रूप में ग्रोथ हो रहा है then it is monoaxon. They may be straight needle like या rod like, और ये थोड़ा बहुत curved भी हो सकता है। Their ends may be pointed or hooked या knobbed हो सकते हैं। Monoaxon can be both calcareous and siliceous. Monoaxon spicules जो है calcareous और siliceous दोनों हो सकते हैं। These monoaxon spicules are further divided into, अगर हम लोग इसको further divide करेंगे तो monoactinal, the growth of spicule takes place in one direction only, ये एक डायरेक्शन में ही हो रहा है तो ये monoactinal हो रहा है। और अगर diactinal, अगर दोनों तरफ इधर भी ग्रोथ हो रहा है और इधर भी ग्रोथ हो रहा है तो ये diactinal हो गया। है मोनो एक्सॉन, ही दोनों मोनो एक्सॉन है, एक ही रे है दोनों में। लेकिन अगर ग्रोथ सिर्फ एक तरफ हो रहा है, आप देख सकते हैं सिर्फ इधर पॉइंटेड है, दैट मींस ग्रोथ एक तरफ हो रहा है देन इट इज मोनो एक्टिनल, और ग्रोथ अगर दोनों तरफ हो रहा है देन इट इज डाइएक्टिनल, या आप एक देख सकते हैं कर्व्ड भी है। टेट्रा एक्सॉन, मोनो एक्सॉन जैसे था वैसे ही टेट्रा, अगर 4, आप देख सकते हैं सब में 4 रेज दिख रहे होंगे आपको। द स्पिक्यूल्स हैव 4 रेज ईच पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग टेट्रा एक्सॉन्स कहेंगे। यूजुअली one of the 4 ray is elongated giving the appearance of a crown of 3 rays। 3 ऐसा लगता है क्राउन बना हुआ है। and such spicules are also known as triads। इसमें अभी भी 4 तरह के हो सकते हैं। कैलोथ्रोप किसको कहेंगे, व्हेन द 4 रेज आर ऑलमोस्ट इक्वल। कैलोथ्रेप्स उसको कहेंगे जब चारों रेज जो है लगभग एक समान हो, तो उसको हम लोग टेट्राएक्सॉन कैलोथ्रोप्स कहेंगे। ट्रायंस कहेंगे व्हेन वन रे इज इलोंगेटेड एंड अदर 3 आर शॉर्ट। अगर 4 में से 3 एक इलोंगेटेड है और 3 छोटा है तब हम उसको ट्रायरेन कहेंगे। डायंस कहेंगे व्हेन वन ऑफ द 3 क्लेडाई इज लॉस्ट। अगर 4 रो में 3 में से एक जो छोटे वाले हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे तब उसको हम लोग डायंस कहेंगे। और ट्राई रेडिएट स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइन वेयर द रैप्डोम इज लॉस्ट। रैप्डोम और क्लैक्डोम किसको कहते हैं, व्हेन द वन रे इज इलोंगेटेड इज नोन एज रैप्डोम एंड अदर, जो छोटे वाले को क्लैडोम कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्लैडोम में से 3 क्लैडोम में से एक लॉस्ट हो गया तो 2 बचा तो उसको हम लोग डायंस बोलते हैं। और अगर रैप्डोम लॉस्ट हो गया, व्हेन स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइन वेयर रैप्डोम लॉस्ट हो गया तब उसको हम लोग ट्राई रेडिएट कहते हैं। सिर्फ छोटे वाले 4 क्लैडोम बचते हैं तो ट्राई रेडिएट कहते हैं। और एक तरह का ये देख सकते हैं आप ट्राइन जिसमें 3 है, एक बड़ा है और 3 छोटा है। और एम्फीडिक्स, अगर दोनों साइड एक डिस्क, एम्फी मीन्स बोथ, डिस्क है तब ये एम्फीडिस्क मोनोएक्सॉन कहलाएगा। Sometimes all the rays are equal. When all the rays are equal, it is known as calotropes। अभी मैंने बताया पीछे, अगर सभी रेज इक्वल है तो कैलोथ्रोप।
व्हेन ऑल द 4 रेज परसिस्ट, अगर चारों रेज परसिस्ट है, कोई लॉस्ट नहीं होते हैं, तब उसको टेट्रा रेडिएट या क्वाड्री रेडिएट कहते हैं. समटाइम्स वन ऑफ द रेज इज लॉस्ट, अगर चार में से एक लॉस्ट हो जाएगा तो ट्राई रेडिएट कहलाएगा. एंड दिस ट्राई रेडिएट रेज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्जेस. And if the elongated ray bear at the disc at both end, it is called amphidisc. दोनों एंड पे अगर डिस्क है तब इसको हम लोग एम्फीडिस्क कहते हैं. अब ट्राइएक्सॉन आइए. These spicules have 3 axes that cross one another at right angle. 3 एक्सिस होते हैं, 1, 2 और 3, जो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटकर 6 रेज 1 2 3 4 5 6 रेज प्रोड्यूस करते हैं. तो दस इट इज हेक्सा एक्टिनल. ठीक है, हेक्सा मीन्स 6, एक्टिनल मीन्स रेज. दीज लेकिन स्पिक्यूल्स क्या ट्राइएक्सॉन ही है, 3 ही एक्सिस है जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. द स्पिक्यूल्स आर ट्राइएक्सॉन बट हैविंग 6 रेज, therefore known as hexaactinal spicules. And these are the characteristic of glass sponges में hexactinida. आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा ग्लास स्पॉन्ज हेक्सैक्टिनिटा. उसका ये हेक्सैक्टिनल स्पिक्यूल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक. पॉलीएक्सॉन, पॉलीएक्सॉन अगर बहुत सारे रेज होंगे, दीज आर द स्पिक्यूल्स वेयर विथ सेवरल इक्वल रे, सभी बराबर के रे रेडिएटिंग फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट. एक सेंट्रल पॉइंट से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं. यू कैन सी बहुत सारे हैं. तो स्टार जैसे शेप देते हैं, ये स्टार के जैसे शेप देते हैं पॉलीएक्सॉन, इसीलिए इसका नाम पॉलीएक्सॉन, क्योंकि बहुत सारे रेज निकल रहे हैं. ये माइक्रोस्क्लेरिक के साथ ये भी मिलते हैं, तो ये आपका पॉलीएक्सॉन हो गया. Now the polyaxons also can be divided into two broad categories with a small center and long ray. अगर सेंटर छोटा हो और रेज बड़े बड़े हो तो ये एक ये डिवीजन हो सकता है. और लार्ज सेंटर विथ स्मॉल रे, या सेंटर लार्ज हो और रेज छोटे छोटे हो. रेज छोटे छोटे हो, ये 2 तरह के हो सकते हैं, जिसमें सेंटर छोटा हो रेज बड़े हो, या सेंटर बड़ा हो रेज छोटे हो. द फर्स्ट कैटेगरीज इज सब डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट कैटेगरी मतलब जिसमें सेंटर छोटा है और रेज बड़े हैं, उसमें 3 तरह के हो सकते हैं. ऑक्सीएस्टर्स जिसमें पॉइंटेड रेज हैं, स्ट्रॉन्जीलास्टर्स जिसमें राउंड एंड होगा, और टाइलास्टर्स जिसमें नॉब्ड होगा, घुंडी के नुमा रेज होगा. अगर पॉइंटेड है तो ऑक्सीएस्टर्स, अगर राउंडेड एंड है तो स्ट्रॉन्जीलास्टर्स, और टाइलास्टर्स अगर नॉब्ड रेज है. और सेकंड टाइप में जिसमें लार्ज सेंटर है और रेज छोटा है, वो 2 तरह के हो सकते हैं. स्फेयर एस्टर विथ डेफिनेट रेज और स्टर एस्टर्स विथ रिड्यूस्ड रेज, जिसमें छोटे हैं या बड़े हैं. और स्फेयर्स और डेस्मा ये क्या है? The spicules under this category are rounded body where growth occurs in concentric manner around a center. अगर सेंटर के अराउंड चारों तरफ ग्रोथ हो रहा है तो उसको स्फेयर्स कहेंगे. और डेस्मा किसको कहेंगे? These type consist of minute monoaxons, मोनोएक्सॉन होंगे या ट्राइरेडिएट टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स होंगे, called crepis, on which layer of silica have been deposited irregularly. ठीक है, उसके ऊपर लेयर ऑफ सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है इरेगुलर में. और डेस्मा को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं: मोनोक्रेपिड, ट्राइक्रेपिड, टेट्राक्रेपिड एंड लिथिस्टेड डेस्मास. द फर्स्ट 3 टाइप्स मोनोएक्सॉन, ट्राइरेडिएट एंड टेट्रा हैव, while the 4th variety is formed by the union of first 3 variety. ये मोनो मतलब 1, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मीन्स 4. ये 3 के बनेंगे, ये 3 से, ये 1 से, मोनोएक्सॉन से, ये ट्राइरेडिएट से, ये टेट्रा से, और ये तीनों के मिक्स होने से लिथिस्टेड डेस्मास बनते हैं. नाउ डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स. स्पिक्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं? जैसे हमने स्पॉन्जिन फाइबर्स का डेवलपमेंट पढ़ा बाय द सेल ऑफ स्पॉन्जियोब्लास्ट, वैसे ही स्पिक्यूल्स का डेवलपमेंट क्या है? The spicules are the secretory products of scleroblast. ये scleroblast सेल से सिक्रीट होते हैं. Their origin
of calcareous spicule is clearly known. The formation of monoaxon calcareous spicules begins as minute deposition of calcium carbonate in the interior of binucleate scleroblast. स्क्लेरोब्लास्ट बाइन्यूक्लिएट होता है, उसके अंदर में छोटा सा कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है और उसके बाद एक्सियल थ्रेड के अराउंड स्पिक्यूल्स बिगन टू डिपॉजिट बिटवीन द टू न्यूक्लियाई विच अल्टीमेटली सेपरेट द सेल इनटू टू. अभी फिगर मैं दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगी. Of the two cell, one is known as founder cell and the other cell is designated as thickener cell. दो सेल बन गए, तो जिससे बना है वो फाउंडर सेल और जो बना वो थिकनर सेल, विच डिपॉजिट एडिशनल लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके ऊपर एडिशनल लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स. अगर ट्राई रेडिएट है तो 3 स्क्लेरोब्लास्ट पार्टिसिपेट करेंगे एंड एक्ट मोर और लेस इन द सेम वे, और जैसे ये बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे. सिलिशियस स्पिक्यूल्स का जो डेवलपमेंट है वो अभी तक क्लियरली नोन नहीं है. दिस यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ, ये देखिए ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं दो न्यूक्लियस वाले, ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं. इसके बीच में डिपोजिशन ये हुआ, रेस का बन रहा है, और ये देखिए ये रेस बन रहे हैं, और ये स्पिक्यूल्स, ये थिकनर सेल, ये फाउंडर सेल. ठीक है, ये फाउंडर सेल, ये थिकनर सेल, अभी जो मैंने बात कही थी, और ये स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ. ये मोनोएक्सॉन बन रहा है. अगर आपका ये तीन सेल्स अगर होंगे तब ट्राइएक्सॉन बनेगा. द कैल्केरियस स्पिक्यूल्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज स्क्लेरोसाइट्स. दीज स्क्लेरोसाइट्स डिराइव फ्रॉम बाइन्यूक्लिएटेड मेसेनकाइम स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है. देख रहे हैं बाइन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है. A monoaxon spicules is each ray of a triradiate spicule is secreted by 2 sclerocytes. Among these 2 sclerocytes, one act as a thickener cells and other act as a founder cell. अब ये आप देखिए 3, अगर एक दो तीन सेल मिलके बना रहे हैं तब ये ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा. ये तीनों अपना अपना एक एक मोनोएक्सॉन कर रहे हैं, ये तीनों फ्यूज हो जाता है तो ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स बन रहा है. The initiation of the formation of the spicule starts with the deposition of calcium carbonate between the two nuclei of binucleate mesenchyme. दोनों न्यूक्लियाई के बीच में ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन स्टार्ट होता है, और ये तीनों अपना अपना एक एक बना के तीनों फ्यूज हो जाते हैं मेसेनकाइम में, और द स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रेटिंग द कैल्केरियस स्पिक्यूल इज नोन एज कैल्कोब्लास्ट. और वाइल द स्क्लेरोब्लास्ट जो कैल्केरियस स्पिक्यूल सिक्रेट करेगा वो कैल्कोब्लास्ट कहलाएगा, और जो सिलिशियस स्पिक्यूल सिक्रेट करेगा वो सिलिकोब्लास्ट कहलाएगा. Now what are the taxonomic significance of the spicules in sponges? इसका taxonomic significance क्या है? The existence of spicules in sponges helps the taxonomist greatly in arranging the diverse species. जो classification है that is dependent on these spicules और types of spicules पे ही classification of sponges develop है. तो taxonomist को ये help करता है with regular and definitive order. The classification of sponges is largely based on the type of the spicules they possess. अभी मैंने कही थी बात कि classification is dependent on the types of spicules. It is interesting to note that in Porifera, evolution has taken place in the mesenchyme. वहाँ पे mesenchyme से ही start हो रहा है, तो ये एक interesting feature है. This is about the skeleton in sponges. So thank you all of you.